Good morning, students. Today we are going to start our chapter named as Madam Rides the Bus from your textbook First Flight. Before moving ahead towards the chapter, let me introduce you about the chapter. In this story, we will be reading about an 8-year-old girl who was very curious to have a bus journey. She wanted to look out of her village, out of her house. She didn't have any friend and she wanted to ride a bus. So, in this chapter, she fulfilled her dream. She sees the gap between known that there is death and our understanding of it. Before moving to the ride, she did not seen about the life and the death, moments of life and death, but during that bus journey, she saw it. About the author, basically, the name of the author is Valikanan, which is his pen name. In actual, his name was R.S. Krishnanam, who was born in 1920 and died in 2006. He was a great Tamil author, a writer, a journalist, a critic, and a translator. This story also was written in Tamil language but then later on translated into English. This is the brief summary of the author that Valikanan was lived in Triveli. He started writing in his young age and published near about 25 books by the time of 30. He worked for magazines like Cinema Ulgam, Navkashti, Grama Ohnia, and Hanuman. This is the brief summary of the author. He also got Sahitya Akademi Award for Tamil for his critical work. Now let's start the story. Madam Rides the Bus. There was a girl named Valimai. She was 8 years old and very curious about the things. Her favorite pastime was standing at the front doorway of her house, watching the happenings in the street outside. She had no playmates of her age in her street to play with. The nickname of the girl was Wali. She was 8 years old girl and she was very much curious about the thing whatever happens during daytime around her. I have already told you that she was not having playmates or her friends to play with, so she used to stand at the front of doorway. अपने दरवाजे के पास वो खड़ी रहती थी और जो भी आसपास स्ट्रीट के आसपास जो भी हो रहा होता था वो उसे देखती थी. Watching the street gave her tremendous joy and new experiences. सड़क को देखना, स्ट्रीट को देखना उसे बहुत खुशी देता था. Tremendous, huge, और नए नए एक्सपीरियंस देता था. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. It was the source of unending joy for her. द मोस्ट फैक्सीनेटिंग, सबसे ज़्यादा उसे क्या पसंद था? टू सी द बस, बस को देखना जो कि उसके विलेज से एक जो पास में टाउन था वहाँ तक ट्रैवल करती थी. हर 1 घंटे में वो आती और जाती थी वहाँ पर. तो उसे देखना कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कौन कैसे उतर रहा है, उनकी एक्टिविटीज़ को देखना, वॉच करना, ये सब उसकी मनपसंद चीज़ें थी. Buzz and Granny riding the bus grew into an overwhelming desire in her mind. Over many days and months, Wali gathered information and detail about bus journey. When she used to see that bus daily, a desire came in her mind to ride that bus.
जब वो डेली देखती थी, वो सोचती थी उनको कितना मज़ा आता होगा बस राइड करने में, उनको कितना अच्छा लगता होगा बस राइड करने में। तो एक डिज़ायर उसको हुई कि वो भी एक बस राइड ले। तो उसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना स्टार्ट किया अबाउट द बस, कैसे जाती है, कैसे आती है, कितना चार्ज है, कहाँ पर रुकती है, कैसे होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो क्या करती थी, कलेक्ट करती थी वेन एवर हर मदर यूज टू टेक द नैप इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में जब उसकी मदर नैप लेती थी तो वो ये सब इन्फॉर्मेशन जो भी उस बस में आता जाता था अपने नेबरहुड से, वहाँ से इन्फॉर्मेशन को गैदर करती थी कि कैसे कैसे उसे आना है, कैसे जाना है, कितना बस का फेयर है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन वो वहाँ पर गैदर कर लिया करती थी। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। अब जो टाउन था 6 माइल दूर था और जो फेयर था, टिकट चार्ज था, वो 30 पैसे था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। और जो ट्रिप है वो 45 मिनट जर्नी है, 45 वन साइड 45 मिनट्स की थी। शी प्लान हर ट्रिप वेल। उसने थोरोली स्टडी किया सिचुएशन को, कब वो जाएगी, कब वो आएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली she collected money. She gave up all the other desires to collect that money. Obviously she did not want to uh, ask money from her mother. अपनी मदर से वो लेना नहीं चाहती थी। Obviously इसकी जो मदर है वो डिनाई कर देती उसे अकेले बस जर्नी पर जाने से। तो उसने अपने जितने भी उसको पॉकेट मनी मिलती थी और टेबल्स के लिए उसको जो पैसे मिलते थे, शी गिव अप एवरीथिंग टू टुक दैट बस जर्नी। उस बस जाने के लिए उसने वो सब गिव अप किया और मनी को कलेक्ट किया। वन फाइन स्प्रिंग डे शी टुक द आफ्टरनून बस टू द टाउन। अब उसने क्या सोचा कि उसकी जो मदर है, अब 1 घंटा उसे 45 मिनट्स जाने में लगेंगे, 45 मिनट्स उसे आने में लगेंगे। तो उसने क्या प्लान किया, जब उसके मदर नैप ले रही होंगी तो वो बस में चली जाएगी। तो एक स्प्रिंग डे था और शी moved for the bus journey. The conductor was a jolly sort of fellow. He was fond of joking. It was the slack time when Wali got into the bus. अब जो बस कंडक्टर था वो जॉली नेचर का था, उसको पसंद था जोक्स को क्रैक करना। तो जब वली बस में चढ़ती है, ही जोकिंगली कॉल्ड हर मैडम। उसने क्या किया, वली को क्या बोला, मैडम। वली फाउंड द बस अट्रैक्टिंग। अब वली को बहुत मज़ा आया बस में चढ़कर। इट वॉज़ अ न्यू बस पेंटेड विद ग्लीमिंग कलर्स। ये जो बस थी न्यूली पेंटेड थी ब्यूटीफुल कलर्स के साथ। वली बॉट अ टिकट फॉर हर। अब वली ने टिकट ली अपने लिए। वली ऑल्सो एन्जॉयड आउटसाइड व्यू थ्रू द विंडो। शी सो द canal, palm trees, grassland, distant mountains, the blue sky, acres of green field, etc. Wali had light-hearted conversation with some of the passengers. She was the center of attraction for all of from them. अब जो वली थी उसने एक एक मोमेंट उस बस राइड का एंजॉय किया। उस रास्ते में जितनी भी चीज़ें थी वो उसने सब एंजॉय की। तो वहाँ पर उसने वो थ्रू आउट द जर्नी जितनी भी चीज़ें थी उसको सीट पर बैठकर नहीं बल्कि खड़े होकर एंजॉय करके, क्लैप करके, बहुत ज़्यादा हंस के उस जर्नी को एंजॉय किया। एंड शी बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सबके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। वाई? क्योंकि सबके लिए एक सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि एक इतनी छोटी बच्ची बस राइड ले रही है, वो भी अपने बिना पेरेंट्स के। एंड सेकेंडली जो वो दिखा रही थी कि वो छोटी नहीं है, ठीक, शी वॉज मेच्योर, अपने आप को मेच्योर शो कर रही थी। तो इस कारण से सबके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो बन चुकी थी। सडनली वॉली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। सडनली क्या हुआ, जो वली है उसने खुशी के मारे अपने हैंड्स को क्लैप करना स्टार्ट कर दिया। देयर वॉज अ यंग काउ रनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द कार। एक यंग काउ थी जो बस के आगे भाग रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड।
रोड के मिडल में। द एनिमल वॉज फ्राइटन एंड इट रैन फास्टर एज द ड्राइवर हॉन्क द हॉर्न। अब जो ड्राइवर हॉन्क कर रहा था, हॉर्न को बजा रहा था, एनिमल क्या है, फ्राइटेंड हो गया और वो ज़ोर से भागने लगा। वली फाउंड इट वेरी फ़नी। अब वली को ये चीज़ बहुत फ़नी लगी क्योंकि उसने ये चीज़ देखी ही नहीं थी। उसके लिए ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि ये क्यों भाग रहा है, इसे क्या हुआ है। शी जस्ट लाफ्ड एंड लाफ्ड। वो हंसी और बहुत ज़्यादा हंसी। वली एन्जॉयड एवरी साइट विद एक्साइटमेंट। हर चीज़ को उसने एक्साइटमेंट के साथ एन्जॉय किया। शी डिडंट गेट ऑफ द बस एट द टाउन फॉर द फियर ऑफ बीइंग लॉस्ट। अब यहाँ पर एक और मैच्योरिटी उसने दिखाई कि जब बस टाउन पर पहुँच जाती है तो बस कंडक्टर कहता है कि योर जर्नी हैज़ बीन कम्प्लीटेड एंड वेयर यू हैव टू गो नाउ। तुम्हें अब कहाँ जाना है। तो वली क्या कहती है कि बस ड्राइवर कंडक्टर कहता है 30 पैसे तुम्हारे पूरे हो गए एक साइड की जर्नी के लिए, इतना ही, अब यहाँ से आगे तुम कहीं नहीं जा सकती। तो वली क्या कहती, उसे 30 पैसे और देती है कि आई हैव टू गो बैक, मुझे वापस जाना है और ये 30 पैसे और ले लो। तो शी मेड हर रिटर्न जर्नी बाय द सेम बस। अब उसने ऑलरेडी प्लान किया था कि उसे उसी बस में वापस आना है, तो वो कंडक्टर से वापस आने के लिए भी टिकट ले लेती है। हेयर बस कंडक्टर आस्क्ड हर फॉर द सॉफ्ट ड्रिंक। अब कंडक्टर पूछता है कि ठीक है मैं तुम्हें सॉफ्ट ड्रिंक ला देता हूँ, तो वली ने साफ मना कर दिया। शी सेड आई डू नॉट हैव मच मनी। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं नहीं लूँगी। On her way back, the sight of same cow laying dead by the roadside made her sad. अब जो वो वापस आती है तब भी वो ब्यूटीफुल सीनरीज का हर सीन का मज़ा ले रही होती है, बट when she saw the cow dead, this sight made her sad. The memory of that cow haunted her. उस मेमोरी ने उसको हॉन्ट किया। She did not look out through the window anymore. और उसके बाद उसने विंडो से बाहर नहीं देखा। At last the bus reached her village. लास्ट में जो बस है वो विलेज पहुंच गई। She thanked the conductor and got down the bus and went straight to her home. और अपने घर वापस चले गई। This was how she had her first bus ride without letting anybody know about it. ये उसकी फर्स्ट बस राइड थी जो उसने ली बिना किसी के जानने हुए। So what do we learn from here? We learned the maturity about the Wali, about the character. कैसे उसने अपने आप को जिस तरह से उसने प्लान किया था, जिस तरह से उसने उन सब चीज़ों को छोड़ा था जो उसे बहुत पसंद थी, जस्ट टू हैव दैट बस राइड। So this is a moral for all of us that if we desire something, अगर हम कुछ भी चाहते हैं तो हमें उन चीज़ों को छोड़ना होगा जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आई होप you have understood the chapter. Thank you. Have a good day.